Hello everyone. Now this video is going to be about use of negation. Negation means no words in different situation. But you will say कि अच्छा जब इसको खाना खिलाती हूँ ये बोलता है नहीं, और या फिर मैं इससे कुछ लेती हूँ तो ये बोलता है नहीं. दैट इज एक्सेंट्रिक नेगेशन. लाइक चाइल्ड यूजेज नो फॉर his or her needs or demands. Like you're overfeeding the child, or your child is not liking the food you are giving, then child says no. Or if you're taking away the toy, the child says no. Or you ask do you want this, then child says no. सो दिस इज फॉर द जो बच्चा अपने लिए अपनी जरूरतों के लिए नो यूज करता है, वो एक्सेंट्रिक होता है. नेगेशन मीन्स हमने बोला कि जाओ तुम वहां से चार्जर लेके आओ, लाइक, और गो गेट द आइसक्रीम फ्रॉम द फ्रिज. और आके बच्चे ने ये बोला कि अच्छा मुझे चार्जर नहीं मिला, या चार्जर वहां पे नहीं है, या मैंने नहीं देखा कहाँ है, फ्रिज में नहीं है, खत्म हो गया. सो बेसिकली when in the situation to use no for a purpose, and it's not for the need and demand. Again, it's in a two-way communication. When someone is asking you and then child is supposed to answer back the things using the negation. So that is called a negation. Now let's talk कि हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं. सो टेबल टॉप एक्टिविटी, जो एक नॉर्मल वे ऑफ डूइंग है कि बच्चे को बिठा के टेबल टॉप सेटिंग या मैट सेटिंग पे बिठा के कि देखो टेडी बेयर, if you want to use animals or any of the object, because why I say animals most of the time and why I suggest to use animals most of the time is the reason that most of the kids are fond of animals at the initial level of development or at very early age. So we try to reduplicate the developmental stage in the child whoever have the speech and language delay. So in my experience with working with all these delayed kids, animals have been a very good reinforcers and a material to use them further to make them understand or learn particular skill. So for example, you have teddy bear or you have a dog or you have a duck, so chalo let's keep the teddy bear. तो टेडी बेयर रख दो, रख दिया. बच्चे को बोलो चलो अब इसमें से काउ रख दो, एंड मेक श्योर दैट चाइल्ड नोज द थिंग्स यू आर सेइंग. तो बच्चा आपकी तरफ देखने लगेगा. मेक चाइल्ड से काउ तो नहीं है, then same thing you can do with the shapes and the colors and the different object. Then what you can do is you can do the walkable activity कि जाओ वहां से बॉल लेके आओ, जाओ वहां से डॉल लेके आओ, जाओ वहां से टेडी बेयर लेके आओ, जाओ वहां से कार लेके आओ, and then point to some place, go वहां से बस लेके आओ, and bus or any of the object said object should not be there. So what child does is goes there and he'll start looking at you, or he'll just stay there, or he will come back. So you have to make the child repeat verbally, bus to nahi hai, there is no bus, I don't see a bus. सो इस तरह के रिस्पॉन्सेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. पहले आपको सिटिंग में करना है, फिर आपको वॉकेबल पे करना है. पहले आप नाउन पे करो, फिर आप वर्ब्स पे करो, फिर आप पर्सन पे उसको ट्रांसफर करो. क्योंकि जो डिलेड बच्चे होते हैं उसमें पर्सन की सिग्निफिकेंस उनके लाइफ में बहुत कम होती है. सो इज द रीजन कि पहले आप ऐसे ऑब्जेक्ट से शुरू करो जिसपे बच्चे की फोकस है, जो बच्चे वो पसंद है यूजुअली. सो और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्हें ये ऑब्जेक्ट्स पसंद ना हो, तो ट्राई टू फिगर आउट. जिसको पजल्स पसंद है, पीसेस ऑफ पजल्स कैन बी यूज. जिसको कार्स पसंद है और ट्रांसपोर्ट्स पसंद है, व्हीकल पसंद है, वो यूज हो सकता है. जिस भी बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो इस सेटअप में आप पॉसिबली ट्राई कर सकते हैं. So using a negation is a very important skill so that you understand why child is uh, doing particular behavior. Child doesn't get, for example, you keep the toys and one piece is missing. Child starts throwing the tantrum, non-verbal tantrum or body movement. So what you have to do is make child say that and you understand why child is doing it. तो उसको उस सिचुएशन पे अप्लाई करवाओ तो उनको समझ आएगा कि जो चीज़ नहीं है, एटलीस्ट दे से टाइगर नहीं है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुमने टाइगर क्यों नहीं रखा, माइट बी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड. सो अगर नो के साथ इंडिकेट करेंगे तो सामने वाले को समझ आएगा कि बच्चा ये टेंट्रम्स क्यों कर रहा है, और थोड़ी सी उनकी लाइफ आसान हो जाएगी. सामने वाले को उनके लिए समझना आसान हो जाएगा. हमें रीजन मिल जाएगा कि वाई दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इज सरफेसिंग, द अंडरनेथ कॉज ऑफ इट.
तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द किड्स हु हैव डिलेड दे हैव अ बिट ऑफ ओसीडी इन जनरल, ऑल ऑफ अस हैव अ बिट ऑफ ओसीडी इन वन और द अदर एरियाज ऑफ आवर लाइफ, बट उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है और ये टैंट्रम और मेल्टडाउन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम नेगेशन सिखाते हैं तो हमें टू वे कम्युनिकेट करने में बहुत सारे फायदे होते हैं। So using a negation is very important skill in communication to make others understand what you don't want or what you did not get. So इसलिए just work on it and just let me know if it works for your child or not. Rest I'll keep putting up the videos further for the different topics, and if you want any other topic, please DM me or comment me. Thank you.